الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ، حصول ثواب آخرت، رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جو مدنی پھول بیان کیے جائے ان پر عمل بھی کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، آج کا موضوع ہے ایک عنوان، اور اس عنوان میں مختلف چیزیں آپ کو لے کر ایک ہی سلسلے میں آئے ہیں، یعنی ایک اس میں ایک خبر، اور اسے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں نے مدنی خبر بنایا۔ اسی طرح ایک معاملہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، امیر علیہ سنت کے خصوصی مدنی مذاکروں کے دوران جو ہوا اس کی صورت، اور ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی، اس کے تعلق سے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول اور مفتی صاحب کی کال بھی آئی، وہ بھی آپ کو مدنی پھول ہم نے آج سنانے ہیں۔ اور ہمارے ابتدائی طور پر آپ کو جو ہم سلسلہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ مدنی خبر کے تعلق سے ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بہت سی چیزوں میں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، صفائی کے تعلق سے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، پھر بہت سے نظام کے تعلق بے احتیاطیوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے معاملات میں، اپنے گھروں میں، اپنے جامعات المدینہ میں، اسی طرح اپنے محلوں کے معاملات کو کس طرح دیکھنا چاہیے۔ بعض کام کی ذمہ داری بعضوں کی ہوتی ہے، بعض محکموں کی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کاموں کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ورنہ نتائج بہت سے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اچھا، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، عام طور پر اس کے لیے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اختتام پر یہ اس کی غلطی تھی، یہ اس کی غلطی تھی، یہ اس کی غلطی تھی، تو دوسروں کی غلطیاں، کسی بھی کمزوری کے بعد دوسروں کی غلطیوں کو بیان کرنے کے بجائے ہمارا یہ پہلو اور ذہن ہونا چاہیے اپنی غلطی دیکھیں۔ فرض کریں دوسرے کی غلطی 90% تھی، آپ کی 10% تھی، اب 10% کو دیکھ لیجئے، تاکہ اس 10% کا دیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ 10% غلطیاں اگر آپ کی ہیں تو وہ دور ہو جائے۔ تو ایسے حادثات سے جہاں پر ہمارا ذہن کسی اور کی طرف جاتا ہے، وہاں ہمارا ذہن اپنی اغلاط کی طرف بھی جائے۔ وہ حادثہ کیا تھا، مدنی مذاکرے کے اندر آیا، اور مدنی مذاکرے کے اندر اس خبر کو مدنی خبر بنایا گیا مدنی پھولوں کے ساتھ۔ آئیے آپ کو ہم وہ دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ امیر علیہ سنت کے بہت ہی قیمتی مدنی پھول ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو بہت ہی توجہ سے سنیے اور اس کے مطابق عمل کا بھی معمول کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جائے حادثہ کے بالکل برابر میں جو گھر ہے اس میں موجود ہیں، اور جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا
इस आग लगने का, वो इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद है। किसी को कचरा फेंक के उसको तकलीफ ना दे, कचरा फेंक के उसमें आग लगा के उसमें मिर्चियां डाल के दूसरों को तकलीफ देने का नतीजा एक बाप के दिल से पूछे कि उसका दिल कलेजा सब उसके साथ दफन हो जाता है, उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ये वजह क्या हुई आग लगने की? ये कचरे में किसी ने माचिस की तीली डाली, उसका धुआं, उसकी आग मेरे घर में इतनी भड़क उठी कि मैं अपने आप को ही खो बैठा। तो आपके बच्चे भी इसमें कोई जहां भाग के हलाक हुए हैं क्या? मेरे 3 बच्चे, एक लड़की, बीबी आमना, आलियान और अब्दुल अजीज। मेरे बाप का नाम दिया था उसको, मेरे बाप की शक्ल का, तीनों के तीनों उसमें शहीद हो गए। जोरे तूफान है, फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूल खुदा। मेरी बीवी अभी तक हॉस्पिटल में आईसीयू में है और मेरे भी हाल कुछ ऐसे ही है। अल्लाह ताला तौफीक दे, हर इंसान एक दूसरे से भलाई करे। इंशाल्लाह मेरी जैसी नौबत किसी बाप के साथ नहीं होगी। मेरे अहले सुन्नत कि मेरे बच्चों के लिए ऐसी दुआ करे कि उनके लिए जन्नत में एक घर बने, और उसकी वालदा को जो आईसीयू में है उसके लिए ऐसी दुआ करे को बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। जोरे तूफान है, फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूल खुदा। रात को मैं खिला के गया हूँ बच्ची को, और सुबह देखा तो हो गई। इतना चाहते थे हम बच्ची को, इतना रखते थे, सबके पास आती थी जाती थी। कल मिल के गई हमसे। बस इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आहना कामियां हाय बर्बादियां, होगा अब मेरा क्या या रसूले खुदा। हजरत साहब से भी मैं यह गुजारिश करूंगा कि आवाम को ये पैगाम दें कि आप जो है अपने कचरे अपने गलियों में मत फेंकें, अपनी बिल्डिंगों की छतों पर मत फेंकें, डस्टबिन में डालें आप। मतलब ये आग लगने की वजह ये कचरे का बाइस बनी? वो खुद बैठे हैं वहां पर, मैंने गली भी देखी है वहां पर। वो गली में कोई सड़क नहीं है, वो छत के ऊपर है, नीचे गोडान है, ऊपर वो तंग सी गली बनी हुई है, और बिल्डिंग के लोग जो है वहां पर कचरा फेंकते हैं, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो ये हमारी गफलत है, और उस गफलत की वजह से आज जो है इस शख्स के जो है 3 बच्चे जो है शहीद हो गए, उनकी वाइफ जो है जख्मी है, और पूरा मोहल्ला सोगवार है। तो मैं समझता हूँ अगर हम सब मिलकर इस तरह की जो है गंदगी का अगर खात्मा करेंगे तो आइंदा इन हादसा से हमको बचने में काफी जो है मदद मिलेगी। बहुत दुख हुआ, मेरे को भी दुख हुआ है। और मेरी लड़की भी जाकिर है, अल्लाह पाक इसको सेहत देवे, अच्छा देवे, और ईमान अल्लाह पाक इसको हिम्मत देवे। आमिना थी 4 साल की, और एक इससे छोटा बेटा था आलियान, वो 2.5 साल का था, और एक छोटा बच्चा था 1 साल का, अब्दुल अजीज नाम था। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इस घर में सोए हुए थे रात के 2 बजे, और 4 बजे ये आग उठी भड़क और बिजली चली गई मेरी। मैंने जनरेटर के लिए खाली जैसे ही दरवाजा खोला और आग ऐसे ही निकली, मैं वहां जाके गिरा, अंदर जाके गिरा हूं मैं। फिर मैंने अपने बच्चों को उठाने के लिए गया, इतनी देर में उसके दिमाग में ऐसी धुआं चली, जो 1 साल का बच्चा था वो तो मेरे हाथ में ही खत्म हो गया, मैं समझ गया था। वो 3 साल की बच्ची और आलियान ने बेचारे बहुत तरफ तरफ के अपनी जान निकाली। इस जगह में
बातें। यहाँ तरफ तरफ के बेचारे इसने भाईजान ने सबने मेरी मदद की, खिड़कियों से लोगों को लेके गए, हॉस्पिटल जाने तक दम तोड़ दी। अच्छा, ये इनका इंतकाल जो हुआ है झुलसने से नहीं, दम घुटने से हुआ है? दम घुटने से हुआ है, जला एक भी नहीं है। मेरे भी हाथ इसलिए जले कि मैं मेन दरवाजा खोलने के लिए गया, वो भी गर्म था, मेरे हाथ ही उधर ही चिपक गए और ये वो हाथ चिपकने से पूरी चमड़ियां जल गई। अच्छा, अभी जो आपको बच्चों की जो वालदा है उनकी क्या तबीयत है, वो क्या बता रहे डॉक्टर वगैरह, क्या कह रहे हैं उनके बारे में? सांस ऐसा है, आईसीयू में रखा है, ऑक्सीजन लगा है और इसमें सांस सही करवा रहे। जी बाबा, आप क्या फरमाते हैं? आईसीयू में वेंटिलेटर पर है, इसका मतलब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन बच्चों को 4 साल से लेकर 1 साल तक की इनकी उम्रें, 4 साल, 3 या 2.5 साल और 1 साल, तो इन बच्चों को इनके वालिदैन के लिए ज़ख़ीरा करे, इनकी शफाअत करने वाला बनाए और शफाअत कबूल फरमाए इनके माँ बाप के हक में। अब यह कि सिवाय सब्र के कोई चारा नहीं है, और जो आग में जलकर इंतकाल करे ये शहीद होता है। अब वो बेचारी जो बच्चों की अम्मी है वो भी आईसीयू में, अल्लाह करे कि वो भी शिफायाब हो जाए, और इनके वालिद साहब के भी हाथ जल गए हैं, कुछ इनको भी तकलीफ तो है, लेकिन इनको अपनी बेचारों का भी कहाँ परवाह होगी, जबकि ये इनकी तो कमाई लुट गई ना सारी। तो अल्लाह की रजा पर राजी रहे आप। अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है, गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि बाद औक़ात गिले शिकवे में लोग अपना ईमान दे बैठते हैं। सबसे बड़े सदमे की बात यही है कि कायनात का सबसे बड़ा सदमा जो है ना, वो है किसी का ईमान चला जाना। बंदे को तो दुनिया से जाना ही है, और जो बच्चे दुनिया से जाते हैं, यूं देखा जाए ना तो उन बच्चों के हक में बुरा नहीं होता है कि नाबालिग बच्चा अगर दुनिया से चला जाए तो वो जन्नत में जाएगा, हाँ, उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अब अपना है कि माँ बाप को, अजीजों को सदमा होता है, वो अपनी जगह पर है, होता है सदमा, लेकिन सब्र करें तो अजर बड़ा है, और बच्चों पर जो सब्र करे उसकी तो क्या बात है। चुनाचे हजरत सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने आकाए मजलूम सरवर मासूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में से जिसके 2 बच्चे पेशवाई करने वाले होंगे, यानी फोत हो चुके होंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके सबब उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, और जिसका 1 बच्चा पेशवाई के लिए गया हो तो इरशाद फरमाया उसका बच्चा भी उसकी पेशवाई करेगा। आपने फिर अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में जिसकी पेशवाई के लिए कोई ना हो, फरमाया तो मैं उनकी पेशवाई करूंगा, और मेरे जैसा पेशवा हरगिज ना पा सकेंगे। तो ये कि बच्चों का दुनिया से रुखसत होना ये सच्ची बात है कि फायदे से खाली नहीं है। एक और हदीस शरीफ में फरमाया, जिस शख्स के 3 बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल कर गए, वो उसके लिए जहन्नम की राह में मजबूत तरीन रुकावट होंगे। हजरत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि मेरे 2 बच्चे आगे पहुंच चुके हैं, यानी इंतकाल कर चुके हैं। फरमाया और 2 बच्चे। सैयदुल कुर्रा हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, मैं अपना 1 बच्चा आगे भेज चुका हूं, मेरा 1 बच्चा फौत हुआ है। फरमाया और 1 बच्चा भी। तो पता चला कि 1 बच्चा भी किसी का इंतकाल कर जाए तो वो जहन्नम के रास्ते में
بہت مضبوط رکاوٹ بن جائیں گے. تو یوں بچوں کا فوت ہونا یہ بچوں کے حق میں بھی بہتر بظاہر کہ وہ بغیر حساب کے اب اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے وہ جنت میں جائیں گے, اور ماں باپ صبر کریں تو ان کے لیے بھی اجر کا خزانہ ڈھیر سارا. اور صبر اول صدمے پر ہوتا ہے, جیسے ہی مصیبت آئی بندہ صبر کر لے, بولے کچھ نہیں, کسی سے گلا شکوہ نہ کرے. ہاں آنسو بہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ گریہ رحمت ہے, خود بخود آنسو بہتے ہیں تو بھلے بہیں. چیخ پکار نہ کرے, واویلا نہ مچائے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ صبر کریں گے, اجر کے حقدار بنیں گے. رونے دھونے سے ظاہر ہے کہ جو گئے ہیں بچے وہ آپ کے پلٹ کر نہیں آئیں گے. بے صبری سے صبر کا اجر ضائع ہو جائے گا. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کرنے والوں پر رونے والوں کے لیے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رو رو کر جو آنکھیں سجا دیتا ہے نا, ان سے فرما رہے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. تو بس صبر کیجئے. اب یہ ان کی یادیں جو ہیں آپ کو ظاہر ستائیں گی تو صحیح, جب جب ان کی یاد آئے, مصیبت جب یاد آتی ہے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون اگر پڑھ لیں گے تو جو مصیبت پر اس وقت ثواب مل جاتا تھا وہ ثواب پھر مل جائے گا, اس طرح ثواب ملتا رہے گا. اب ان کی چیزیں یاد دیکھیں گی. اب یہ مدنی چینل والے بار بار جو خالی پنگوڑا دکھا رہے ہیں جھولا, تو یہ ایک خاموش گفتگو, یہ بھی ایک لینگویج ہے, سائن لینگویج, کہ یہ خالی پنگوڑے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو کل تک یہ پنگوڑے آباد تھے, ان میں پھول جیسے بچے لیٹے ہوئے تھے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے والدین کا دل لبھاتے تھے, مسکرا کر ان کا غم غلط کر دیتے تھے. اب یہ صدا کے لیے خاموش ہو گئے اور یہ پنگوڑے خالی ہو گئے. اس طرح ساری دنیا خالی ہو جائے گی, سب کے سب ہم چلے جائیں گے دنیا سے. کوئی آگے جائے گا 4 دن, کوئی 4 دن پیچھے جائے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مومنین کے چھوٹے بچوں کی روحیں چڑیوں کی صورت میں جنتی درخت پر ہوتی ہیں, اور ان کے جد امجد یعنی دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کفالت کرتے ہیں, یعنی یہ ان کی ذمہ داری میں ہے. اور کیا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری میں وہ چلے گئے بچے, اس حدیث کے مطابق. جس کے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے نابالغ, تو اگر وہ اس کا حوصلہ مضبوط ہو نا تو وہ تو ایک طرح سے گویا مبارکبادی کا مستحق ہے کہ اگر بالغ ہو جائے گا تو خدا جانے کیا کیا عمل کرے. نابالغی میں چلا گیا تو وہ گناہوں کا اندیشہ جو ہے وہ جاتا رہا, اور یہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا کہ اب ماں باپ کو یہ جنت میں لے جائے گا. تو یہ ہمارا رونا دھونا عام طور پہ نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر ہوتا ہے, تو دل بڑا رکھو. سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی عمر میں کربلا کے میدان میں تھے, امام علی مقام کے بازوؤں میں تھے, اور پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا, اور ہرمل نامی ایک سخت دل یزیدی نے تیر چلایا اور اس بچے کے حلق کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. اور علی اصغر
रदी अल्लाह तआला अन्हु ने झुरझुरी ली और जाम शहादत नोश कर लिया। इमाम अली मकाम ने कोई चीख पुकार नहीं की थी, इनकी अम्मी ने वावेला नहीं बचाया था। ये साबिरीन का घराना था। तो हिम्मत 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 रखिए। अल्लाह करे कि बच्चों की अम्मी भी सेहतयाब हो। आमीन आमीन। जिन लोगों ने कचरा डाला, जी आपा, ये तो आम है, जो भी ऊपर का मकान होता है, नीचे कोई छत नजर आती है ना, छत पर लोग बहुत कुछ डालते हैं। फिर ये कचरा देखो कितना खतरनाक हुआ। कचरा तो चाहे आग लगे या ना लगे, ना किसी की छत पर डालना है, ना किसी के बरामदे में डालना है, ना किसी के सहन में डालना है, ना किसी के घर के आगे रास्ते पे डालना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वाक़े से जो दर्स हासिल हुआ वो दर्स भी अमीर अहले सुन्नत ने बयान किया और हमें हमारी जिम्मेदारियां भी बयान कर दी। हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने एक तरफ तो शफकत भरा रवैया, हौसला बढ़ाना और टूटे हुए दिलों के सहारा बनने की कोशिश की, दूसरी तरफ हमें मदनी फूल भी दिया, हमें क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह बचना है, किस तरह निज़ाम चलाना है। अब हम लेकर जा रहे हैं आपको इस सिलसिले के एक दूसरे हिस्से की तरफ, और जिसमें अमीर अहले सुन्नत के साथ होने वाला एक वाकया हुआ। वाकया क्या था? वाकया तो आप ये देख सकेंगे कि अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरा किया, कुछ हुआ, उस पर सौती पैगाम वगैरह, ये पूरे सिलसिले है। और निगरानी शुरा ने मदनी मुज़ाकरे के दौरान इस पर मदनी फूल भी दिए और आखिर में अमीर अहले सुन्नत से मदनी फूल भी लिए गए कि खौफे खुदा का मामला हम अपने दिलों में किस तरह बढ़ाएं। आइए वो मदनी गुलदस्ता, वो क्या वाकया था, क्या तफसील थी, क्या अंदाज था, वो भी आपको दिखाएं और साथ ही साथ आपको अमीर सुन्नत के मदनी फूल भी सुनाते। हमारे पास एक हुकूकुल इबाद की एहतियातों से भरपूर एक बहुत ही खूबसूरत मदनी गुलदस्ता है, वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस्लामी भाई बड़ी तवज्जो के साथ इसका थोड़ा सा मैं पस मंजर अर्ज कर दूं। पिछले दिनों खुसूसी मदनी मुज़ाकरा में एक इस्लामी भाई ने कोई सवाल किया होगा और वो सवाल में इन्होंने वक्त ज़्यादा ले लिया, कोई ऐसी बातचीत हुई होगी। अमीर सुन्नत ने उनकी उस गुफ्तगू के बाद उन्हें कुछ बयान किया, कुछ बातें बयान की अमीर सुन्नत ने कि इस तरह, वो भी हम आपको सुनाएंगे क्या बयान दिया। तो उसके बाद अमीर सुन्नत को एक महसूसात हुए। इस तरह एक और इस्लामी भाई से भी कुछ इस तरह के कुछ मामला हुए थे, तो अमीर सुन्नत ने उनसे भी कुछ खुश तबई वाला मामला किया, दोनों से खुश तबई की। मगर वो खुश तबई के बाद एक एहसास सा पैदा हुआ, तो हम वो सारे चीज़ें जो थी वो हमारे कैमरे में कुछ ना कुछ बंद हैं, लेकिन इसका कुछ पस मंज़र बयान करना, बैकग्राउंड बयान करना ज़रूरी था। पहले तो देखते हैं कि हुआ क्या था। अब जो हुआ था वो है तो बड़ा तवील, हमने बड़ा मुख्तसर करके उसको हमने लिया है ताकि, और मैंने कुछ बयान करके आपको इसका आगे पीछे का समझाने की कोशिश की है। तो आइए थोड़ा सा दिखते हैं। मेरा नाम सैयद तसव्वुर हसन मरकज़ुल औलिया लाहौर से हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 माह रहे खुदा अज़्ज़ा वजल्ला के मदनी काफ़िलों का मुसाफिर भी हूँ और मदनी इनामात व मदनी काफ़िला कोर्स जो आज इख्तिताम पजीर हुआ है उसका शुरका भी हूँ। वो कोई मुक़र्रिर बहुत तवील जाए या कोई नातख्वान बहुत तवील माइक पकड़ के लगा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? यूं भी तो बोलते हैं माइक छोड़ता ही नहीं है, ये छोड़ चुके हैं उसे। मैं खुश तबई के तौर पे बोलता हूँ, दूसरों की बारी है ना, तो माफ कर देना, खुश तबई के तौर पे बोल दिया, दूसरों की बारी आती रहे ना। यानी ये होने के बाद अब ये हुआ था कि यार इसको इनको मैंने बोल दिया, तो फिर अमीर सुन्नत ने अब इनकी दिल जोई के लिए कुछ तोहफा इनको देना चाहा, तो अब ये तोहफा देने वाला मामला हम आपको दिखा रहे हैं। ये बापू जी हैं हमारे, यार इनको मैं इस तोहफा देना चाहता हूँ। अभी 2 नोट आपकी तरफ से मिले भी थे थोड़ी देर पहले। माशाअल्लाह, मैंने इनको बोल दिया कि माइक नहीं छोड़ते हुए रही हूँ, थोड़ा बेचैनी हो रही है, दिल थोड़ा उदास हो गया होगा इनका, माफ भी कर देना। कितने ये एक केस हुआ था, अब दूसरा केस है। आपने सफर किया मदनी काफिलों में श्रीलंका में, तकरीबन 27 माह होगा, अभी जारी है, अभी तो इंशाल्लाह अभी तक यहीं तक पहुंचे।
27वां में सफर करके। अब ये था जो हुआ, तो अमीर सुन्नत ने इनको ये जुमला कह दिया। अब उसके बाद अमीर सुन्नत को हुआ कि यार ये मैंने क्यों कह दिया, तो अब उसका जो आपने एक और मामला किया वो ये कि इस्लामी भाई को आपने अपना सौती पैगाम दिया, और वो सौती पैगाम ये था कि सौती पैगाम इन दोनों को ढूंढो, और सिर्फ ये सबके बीच में बोल देने से या इनको तोहफा दे देने से मुझे तसल्ली नहीं हुई है। अब इन दोनों को ढूंढ कर, क्योंकि मैंने इनसे डायरेक्ट आवाज़ सुनी नहीं है कि ठीक है हमने आपको माफ़ किया, लिहाजा यार उनको ढूंढ कर उनको मेरा सौती पैगाम सुनाओ। तो माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई ने इनको ढूंढा, और ढूंढने के बाद इन्होंने अमीर सुन्नत का भी इनको सौती पैगाम सुनाया। अमीर सुन्नत ने वो क्या सौती पैगाम दिया, वो क्या वॉइस मैसेज दिया इन दोनों इस्लामी भाइयों के लिए, इसको दिल के कानों से सुने। और इसके पीछे एक मकसद ये है कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो कि हम भी चलते फिरते कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन यहाँ एहसास जो अमीर सुन्नत को हुआ, जो ये आपकी फीलिंग है, ये आपका अपना एक मामला है, तो वो फरमाया सौती पैगाम दिया। अब उसके बाद जो उनका रिप्लाई है वो भी आप सुनिएगा कि असल में मामला कहाँ था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने आपको एक सहमत देनी थी, मुझे थोड़ा दिल पर बोझ सा आ गया कि वो इस्लामी भाई जिनको नाले पाक तो मैंने पेश किया तो फतन, उनको जैसे कह दिया कि माइक छोड़ नहीं रहते, तो वो उनसे तो मैंने माफी तो मांगी, लेकिन माफ किया नहीं किया इसका कोई पता नहीं चला जवाब। तो बेचारे वो तो सारे शर्माएंगे। आप इनसे मिलकर कोई इनकी आवाज ले लें, मुमकिन हो तो सौती पैगाम। मजीद वो खास मदनी जिन्होंने श्रीलंका में 27 माह मदनी मरकज की तरकीब से, इनको भी मैंने कह दिया 27 माह में तुमने यही सीखा, यहीं तो पहुंचे हो। अब वो बाजार तो वो भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब कहीं बुरा न लग गया। इनसे भी मेरी तरफ से माफी मांग के इनके घर अलानिया माफी मांगनी चाहिए, मगर हर एक ने फील शायद नहीं किया होगा इस बात को। इनसे भी अगर आवाज ले लेंगे तो थोड़ा दिल मुतमईन हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब इन दोनों इस्लामी भाइयों का जो रिप्लाई है वो हम आपको सुनाते हैं। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये, आप मुझे माफ़ फरमा दें, मैं कामिल मुरीद नहीं बन पा रहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बनने की कोशिश करता हूँ। आपसे अर्ज़ है, आपसे इल्तिजा है, नज़र करम फरमा के मुझे कामिल मुरीद बना दें। या मुर्शिदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आपका ये सग़ीर अत्तार सैयद तसव्वुर हसन आपको अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये अर्ज़ करता है, आपका ये इस काबिल कहाँ कि आप इससे यूँ मामला फरमाए। या मुर्शिदी, मेरे गुनाहों के शामा अमाल थे ये कि मैं आपकी बारगाह का अदब बजा ना ला सका। मेरी ज़मान तराजी ने मुझसे ऐसे कलमात सरजद करवा दिए कि मैं ज़्यादा बोल पड़ा, और आपकी शफ़क़तें थी कि आपने बर वक्त मेरी तरबियत फरमाई। मेरी यही दुआ है कि ता आखिरी दम आपका साया हमारे सर पर कायम दायम रहे, आपकी ये शफ़क़तें, आपकी ये हर वक्त तरबियत हमें जारी व सारी रहे। या मुर्शिदी, बस माफ़ फरमा दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। ये तो मामला जो हुआ ये मैंने बयान कर दिया। अब मैं अमीर सुन्नत से कुछ अर्ज करने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ हज़ारों आशिकान रसूल इस वक्त फैदान मदीना में एक बड़ी तादाद मदनी चैनल पर भी हमें देखो सुन रही होगी। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जिम्मेदार भी होते हैं, एक आम अफराद भी होते हैं। ये जो मामला है कि हम उम्र से भी बंदा उमूमन इस तरह इन हल्की फुल्की बालतों पर माफ़ी नहीं मांगता या इस तरह की चीज़ें नहीं करता। चाहे जाएगा कि एक बड़ी उम्र का एक पीर है या बाप है या उस्ताद है या सेठ है, इस तरह कोई बड़ी मकाम पर होते हैं, तो इस तरह वो नीचे के तबके पे जाकर इस तरह माफ़ी मांगना, फिर एक एहसास दिलाना, फिर इसका एहतमाम करना, फिर किसी की ड्यूटी लगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप तो कर रहे हैं, और आपका ही तो ये हम देख ही रहे हैं कि आपका एक चलता है ये मामला, और लेकिन ये माशरे में नहीं ऐसा, और होगा तो बहुत ही कम। मैं बिल्कुल 100% मना नहीं करता, बहुत ही कम। ये कैसे हो, यानी शोहर बीवी के साथ कैसे कर सकता है ये, और मतलब ये आपस में कैसे मामलात हो सकते हैं? जरा इस मामले में रोशनी डालें, हमारा ये जहन कैसे बने। और अव्वल ये कि अपने कही हुई चीजों पर गौर करना, ये सारी चीजें 3 4 5 चीजें साथ मैंने मिला दी हैं। अब ये कि देखें आप क्या नतीजा क्या निकलेगा, देखते हैं। ये अपने
दरअसल हुकूकुल इबाद का मामला जो है ना, ये थोड़ा है पेचीदा। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला का और बंदे का यहाँ मामला है। अब हुकूकुल इबाद में बंदे से भी मामला हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, रब भी माफ नहीं करेगा। हालांकि बंदा भी अल्लाह का है, हुकूक भी अल्लाह के। अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने ये काम, ये मामला बंदों के सिपुर्द किया। तो अब यूं मतलब है बड़ा डरने वाला मामला कि बंदे से माफी मांगी जाए। क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला जिस पर करम फरमाएगा, वो चाहेगा तो बंदों की सुलह करवा देगा। बहुत डरने की बात है। वो हदीस पाक में सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, पूछा साहबा किराम से, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? मुफलिस माने तंग, गरीब, जिसके पास कुछ ना हो, गरीब। साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमसे जिसके पास दराहिम और सामान ना हो, पैसे ना हो, सामान ना हो, वो मुफलिस है। फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोजे और ज़कात लेकर आया और यूं आया कि इसे गाली दी, उस पर तोहमत लगाई, इसका माल खाया, उसका खून बहाया, उसे मारा, तो इसकी नेकियों में से कुछ इस मजलूम को दे दी जाएंगी, कुछ और कुछ उस मजलूम को। फिर अगर इसके जिम्मे जो हुकूक थे, इनकी अदायगी से पहले इसकी नेकियां खत्म हो जाए, तो इन मजलूमों की खताएं लेकर उस जालिम पर डाल दी जाएं, फिर उसे आग में फेंक दिया जाए। ये अब देखिए कितना पेचीदा मामला है। किसी को मारा ही तो चंद मिसालें हैं, तो ये ऐसा नहीं कि अब इनके अलावा कोई हक तलफी नहीं है। फिर मुख्तलिफ हदीसों में जैसे किसी को ईजा देने वाली नजर से घूरना भी नाजायज है, ये भी हदीस शरीफ में। तो जिस तरह का भी हक मारा उसका, अब इसमें तो माँ बाप को सताने का भी नहीं है। माँ बाप को सताना, उसको माँ बाप को सताया, उसको डांटा झाड़ा माँ बाप को, तो ये तो ऐसी हक तलफी है कि तबाह कर देगी बंदे को, दुनिया और आखिरत दाव पे लग जाती है। माँ बाप के हुकूक तो सबसे बढ़कर है बंदों में, यानी कि बहुत ज्यादा अहमियत है माँ बाप की। तो यूं मतलब ये कि हक तलफियां जो हमारे यहाँ हो रही हैं, अच्छा फिर इसमें पैसे किसी के खा लिए, कर्जा लेकर दबा दिया, जेब से निकाल लिया, जेब काट ली, चुरा लिया, डकैती की, डकैती है कि वो गन पॉइंट पर या वैसे ही धमकी देकर पकड़ के उससे छीन लिया, जूते चुरा लिए, कपड़े सूख रहे थे, किसी के उठा के भाग गया। तो ये बेशुमार हजारों लाखों काम ऐसे जो बंदों से वाबस्ता है कि ये बंदों के हुकूक हैं। अल्लाह का तो मुजरिम है कि अल्लाह ताला ने भी इन चीजों से मना किया है, और अब ये कि बंदे का हक इसमें शामिल के बंदे की इसने हक तलफी है। गीबत की पता चल गया उसको, तो ये भी हक तलफी हुई। मजाक उड़ाया, दिल दुखाने वाले अंदाज में उसका मजाक उड़ाया, दिल दुखा उसका, मजाक उड़ाना ये भी फिर उसी में आ गया। तोहमत लगाई, बदनाम कर दिया उसको। तो यूं हजारों की लिस्ट बन सकती है बंदों की हक तलफियों की। तो ये कि इससे बहुत मतलब यानी कि मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर दुनिया में माफ नहीं करवाया तो। ढूंढ ढूंढ के माफ करवाना जरूरी है, और फिर भी कोई मिलता नहीं है, याद नहीं है, तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करता रहे कि या अल्लाह आज तक जिनकी मैंने हक तलफी की उनकी, मेरी और उनकी मगफिरत कर दे, है ना। ये दुआ करता रहे मगफिरत की। अल्लाह की रहमत बड़ी है कि नदामत होगी, शर्मिंदगी होगी, दिल में खौफ होगा, तो उसकी रहमत से उस सुलह का सामान होगा। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला अपने करम से सुलह करवा देगा। तो ये कि बहुत सख्त इसके अजाब भी हैं मुसलमान को इज़ा देने के। हजरत सैयदना मुजाहिद अलैहि रहमतुल्लाह अलवाहिद फरमाते हैं, जहन्नमियों पर एक किस्म की खारिश
مسلط کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی. ہڈی جو ہے نا، گوشت جڑ جائے گا اور ہڈی دکھے گی، ہڈی ظاہر ہو جائے گی. تو ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا، اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو ندا یعنی دینے والا، پکارنے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. مزید سنیے، حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ، بختی اونٹ یہ سب سے بڑی سائز کا اونٹ ہے، بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے. اب وہ جہنم کے سانپ اور خچر کی سائز کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانے. تو جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں، اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت تو چمڑی سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس عیسیٰ کا بدلہ جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور حقوق العباد کے معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس پورے واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو وابستہ ہوتے ہیں، بھلے ہم جامعۃ المدینہ کے اندر ہوں، بھلے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں، بھلے ہم اپنے محلے کے اندر ہوں، اپنی محلے کی مسجد کے اندر ہوں، ہم کہیں بھی رہتے ہوں، ہم آفیسز میں ہوں، ہم اس کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اگر ہمارا تعلق ہے تو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم کوئی بھی ہماری سوشل لائف ہے جہاں ہم تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے انٹریکشنز ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے معاملات جاری رہتے ہیں. ہمیں کیا حفاظت کرنی ہے، کس انداز سے کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے بہت سے مدنی پھول ہیں. اور اب تو آ چکا ہے ماہ نامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی اور اس کے تعلق سے امیر السنت نے کیا مدنی پھول دیے. پچھلے دنوں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کا تربیتی اجتماع ہوا تو اس حصے کو اور اس کے مفتی صاحب کی کال بھی آئی تھی، وہ بھی ہم آپ کو مفتی قاسم صاحب کی کال کے ساتھ جو ہے وہ صوتی پیغام کے ساتھ وہ پورا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہوئے اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ماہنامہ فیضان مدینہ کے اجرا پر بہت بہت مبارک. اللہ تبارک و تعالی اسے دعوت اسلامی کی طرح ترقیاں اور قبول عام عطا فرمائے. ماہنامے کے اجرا پر آپ نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک ماہنامہ اپنے نام بک کروانے پر پل صراط کی اور دوسرے کے لیے بک کروانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کے نصیب ہونے کی میں نے نیت کی ہے کہ آج ہی انشاءاللہ عز و جل ایک ماہنامہ اپنے لیے اور ایک ماہنامہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے میں بک کرواؤں گا تاکہ آپ کی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں. الحمدللہ آج اس رسالے کا مطالعہ کر لیا ہے اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر 2 رکعت نوافل بھی ادا کیے ہیں. آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ماشاء اللہ. ہاں بھائی اساتذہ کرام پوچھو کس کس نے بک کروائے؟ تو مفتی صاحب نے تو بک کروا لیا ہے اور پورا پڑھ بھی لیا ہے. مفتی قاسم صاحب کو خوشی ہوئی ہے تو 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے. تو جس چیز کو جب بھی خوشی ہو تو مستحب ہے شکر کا سجدہ کر لے اور
2 रकात नफल पढ़ ले। आप भी बिल इस्तियाब पढ़ रहे हैं इसको, यानी मुकल अव्वल ताखिर पढ़ रहे हैं आप भी? अब मैं अभी 40 पेज पढ़ चुका हूँ। 40 पेज? ये कल रात को शुरू किया था, थोड़ा दिन को पढ़ा, अब आज फिर ये स्पीड ब्रेकर आ गया ना, तो आज वो सारी रात की मसरूफियत है कमोबेश। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होता है, रात इसी में निकलती है, फिर वो आप समझदार हैं, हिम्मत फिर ज़रा सोना भी होता है। तो इंशाअल्लाह वो 18 सफ़े बाकी हैं, भी नियत है इस बिल इस्तियाब पढ़ूंगा, जहां जरूरत पड़ती है निशानात लगा रहा हूँ, ओहो, पेपर पर लिख रहा हूँ, ओहो, कोई मशवरे, अल्लाह करे मेरे मशवरे दुरुस्त हों और इनकी समझ में आए। मजलिस की आर्डर नहीं है, मशवरे हैं कि यूं कर लो यूं कर लो, कोशिश कर रहा हूँ। 40 पढ़ लिया अल्लाह की रहमत से। और मैं क्या बताऊं, बस यार ये नहीं, यूं मुबालगा करूं तो आप 100 किताबें पढ़कर भी जो मवाद ढूंढेंगे ना, हो सकता है आपको ये इस रिसाले में मिल जाए, इतना ढूंढना ना पड़ा। हाँ, खुसूसन इसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती कासिम साहब का ही एक ऐसा जामे फतवा न्योता के बारे में, बेहतरीन मालूमाती, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया भर के मुफ्तियान किराम अगर सुन रहे ना, आपको भी इंशाअल्लाह ये काम आएगा। ऐसा इल्मी फतवा, मालूमाती फतवा, और उसमें अकसाम दिए न्यूता की कि कब ये न्यूता का क्या हुक्म है, सूरतें बयान फरमाई है, बेहतरीन। फिर आका में तिजारत मुफ्ती अली असगर साहब का, वाकई इसका भी जवाब नहीं है, बड़े प्यारे प्यारे इन्होंने इसमें चंद फतवे लिखे हैं। और भी हमारे दीगर इस्लामी भाइयों ने तरह तरह के इसमें प्यारे 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 मज़ामीन लिखे। यानी मालूमात का इसमें, यानी कूजे में समुंदर बंद है इसमें। मानामा फैजान मदीना में इल्म का समुंदर गोया कूजे में बंद है। ये कूजा खरीद लो यार, ले लो, इसको खोल के पढ़ो, इसमें है क्या। ये किसी का जाती नहीं है, ये आपकी दावत इस्लामी का है और दीन की खिदमत का है। और वो कितने 3,13,000 जी बाबा बनाने, मेंबर बनाने, बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो। हर महीने 3,13,000 छापने ही है और हजारों मेंबर बन चुके हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।